Okay. Good morning, everyone. Quickly ask if anyone having any doubts till exercise 18.4, which we have discussed in our previous class about the rotational symmetry. रोटेशनल सिमेट्री में अगर किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछें. Okay, I can see some of the students are saying no doubts, as like Abhigyan and Vidya. Quickly, rest of all till. After then we will move to the 18.3 and 18.4, which is talking about 2D shapes and symmetry in two-dimensional shape. Okay. So if we are talking about 2D shapes and symmetry, so 2D शेप में सिमेट्री कैसे होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है. 2D शेप में मतलब जो प्लेन फिगर होता है उसका बात किया जा रहा है, लाइक स्क्वायर, ट्राइंगल, ओके, इस तरह से जो भी होते हैं. तो सबसे पहले ट्राइंगल तक तो हम लोग ने पढ़ भी लिया था, स्क्वायर तक भी इवन हम लोग ने पढ़ लिया था. अब इसके बाद जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स आता है इसके बारे में भी स्पेशली हम लोग देखते हैं. सो सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है. सो स्क्वायर का जो शेप होता है सारा साइड सेम होता है and this is like this type of shape. So in this shape, can you all tell me that how much or number of line of symmetry we can draw? So here it is not talking about the rotational symmetry, it is asking about the line of symmetry. तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि इवन आफ्टर फोल्डिंग इफ यू आर गेटिंग सेम टाइप्स ऑफ फिगर, so if you fold like this, it will be one of the line of symmetry. If you fold like this, it can also be one of the line of symmetry. If you fold like this, it will also be equal and it will be one of the line of symmetry. And if you draw like this will also one of the line of symmetry. So if you count the total number of line of symmetry, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. So if it is talking about the rotational symmetry, then it will be 8, but if it is talking about the line of symmetry, then the answer will be 4 only, right? So how many line of symmetry you can draw in a square? Then the answer is 4. We can draw 4 line of symmetry in a square. ओके, यस, वेरी नाइस. उसी तरह से अगर हम लोग ट्रायंगल का बात करें, व्हाट, हाँ, नेक्स्ट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल, in this triangle, equilateral triangle, we have discussed in our previous class also about the rotational symmetry in equilateral triangle. Now, if we are talking about the line of symmetry in a equilateral triangle, then let us see how much number of line of symmetry it can be draw. So, हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि ट्राइंगल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स आल्सो. So if you are talking about the category or the types of triangle on the basis of their side, one of the types of side triangle which is called equilateral triangle, whose all the sides are of equal length. तो इस तरह का जो भी ट्राइंगल होते हैं इसका तीनों साइड का जो मेजरमेंट होता है that is of equal measurement. Now if you are talking about the number of line of symmetry which we can draw, that is one of the line of symmetry you can draw here,
Okay, another line of symmetry we can draw like here, and another we can draw like here. So you can see the first is this one, second, third. So total 3 line of symmetry we can draw. But if we are talking about rotational symmetry, then it can be 6. But only if it is talking about the line of symmetry, how much you can draw, then answer will be 3. So there are 3 line of symmetry we can draw in an equilateral triangle. Moving to the next types of 2-dimensional shapes, wherein we will check how much number of line of symmetry we can draw. सर्कल में हम लोग ने पढ़ा था, वी कैन ड्रॉ अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, उसी तरह से यू कैन फाइंड आउट फॉर द रेक्टेंगल्स ऑल्सो. हियर देन इट इज आस्किंग अबाउट रेगुलर पेंटागन. ओके, सो थर्ड इज ओनली पेंटागन यू कैन राइट. Pentagon, penta means 5. Okay, so pentagon means a geometrical shapes with the 5 sides or 5 lines, equal numbers of lines. So like इस तरह से जो होता है 1 2 3 4 5. तो नॉर्मली स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रायंगल से जिसका 3 साइड्स होता है, आफ्टर देन स्क्वायर जिसका 4 साइड होता है, आफ्टर देन पेंटागन 5 साइड्स होता है, देन हेक्सागन 6 साइड्स होता है. उसी तरह से ऑक्टागन जो होता है उसमें 8 साइड्स होता है. ठीक है, तो ऑक्टागन तक हम लोग का है, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. तो पेंटागन ये हो गया. पेंटागन में हम लोग को चेक करना है कि कितना जो है नंबर्स ऑफ ये होगा साइड्स. ये थोड़ा सा बैंड होता है, दिस विल नॉट बी एज लाइक स्ट्रेट, क्योंकि अगर स्ट्रेट बनाओगे देन इट विल बिकम स्लाइटली डिफरेंट. तो इस तरह से बैंड होता है, और एंड इट इज इक्विवेलेंट, ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. तो ये आपको एंश्योर करना है कि इट शुड नॉट बी लाइक समथिंग डिफरेंट. तो इसमें थोड़ा सा फिर भी बड़ा हो गया है, तो इसको उस तरह से मेजर करके आप लोग बनाओगे देन इट विल नॉट बी सो मच लार्ज और स्मॉल. तो ये इक्वल होना चाहिए. तो अगर आप इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, दिस विल बी वन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री विच यू कैन ड्रॉ, देन दिस विल बिकम वन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री विच यू कैन ड्रॉ, देन दिस वन विल बी वन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री विच यू कैन ड्रॉ, एंड दिस वन विल बी वन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो अगर आप काउंट करोगे स्टार्टिंग विथ हेयर और हेयर, कहीं से भी स्टार्ट करो, 1 2 3 4. तो यहां पे हम लोग का जो है 5 होना चाहिए. 1 2 3 4 5 साइड्स है, तो 5 होना चाहिए, और एक होगा कहीं यहां हेयर. सो दिस विल वन ऑफ द, सो यहां पे 5 हो गया, या 1 2 3 4 5 आप जैसे भी लिख सकते हो. सो टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए पेंटागन इज इक्वल टू 5, राइट. तो इसी तरह से हेक्सा में कितना होगा, 6 हो जाएगा, ऑक्टा में कितना होगा, 8 हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल शेप वी कैन फाइंड आउट. क्विकली टेल मी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 18.3. एक्सरसाइज 18.3 में आ जाए सभी, एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इट इज देयर. दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक्स व्हिच वी हैव taught now, we have discussed now. So quickly, can anyone tell me? Here the first question is tick the correct one. आपको जो सही है उस पे टिक करना है. First question is asking a rectangle is cut into 2 parts as shown. यहाँ पे एक रेक्टेंगल का फिगर दिया हुआ है, और फिगर को यहां से कट किया गया है, और ये बोला जा रहा है कि ये जो रेक्टेंगल को कट किया गया है उसको 2 पार्ट में कट किया गया है, और एक या 2 पार्ट में इक्वल कट किया गया है. इज दिस सिमेट्रिकल टू दिस वन? सो आंसर इज आस्किंग इज दिस यस और
No. So quickly tell me what will be the answer. Exactly, very good. मैं चेक कर पा रहा हूं, all of the students are answering no, which is absolutely correct answer. Excellent answer given by all. So it is definitely no. तो ये no पे हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि इसमें अगर इक्वली में डिवाइड करना होता तो इट शुड बी इन द मिडिल. यहां पे अगर रहता देन द आंसर विल बी और आंसर वुड बी करेक्ट, तो आंसर सही होता. तो जल्दी से इसको बना लें सभी. एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन को बुक में ही, इसको कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है इस तरह का क्वेश्चन को. दूसरा क्वेश्चन का अगर बात करें, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. सो सेकेंड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट वन. In this it is asking, a circle is cut into two halves as shown. Are the two halves symmetrical? यहां पे एक सर्कल अगर हम दिखाते हैं इस तरह से और इस सर्कल को इस तरह से हम कट करते हैं, so is this the line of symmetry of the circle or is this drawn in such a way so that the circle is divided into two equal half? What will be your answer? Exactly. I can see Ayushi, Dhananjay, Avigyan, Vidya, Manan, Isa. Yes, absolutely. Correct answer. Yes is the correct answer. So the answer will be yes in this, क्योंकि ये इक्वल हाफ में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. अगर इसमें इस तरह से रहता है तो इसका नो होगा. अगर मान लीजिए एक तरफ ज्यादा रहता है एक तरफ कम रहता है तो उसमें नो भी हो सकता है. इस तरह से भी कभी कभी पार्टिसिपेंट्स दिया हुआ रह सकता है. देन आंसर विल बी नो. ओके. सो वट एवर द क्वेश्चन विल आस्क, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन आंसर. सो फर्स्ट का जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन था दैट वी हैव डिस्कस्ड. मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन wherein it is asking about fill in the blanks. So first question is, a regular octagon has dash line of symmetry. हम लोग ने अभी ऑक्टागन के बारे में पढ़ा. ट्राइंगल जो होता है इसमें 3 साइड्स होता है. ठीक है. स्क्वायर जो होता है इसमें 4 साइड्स होता है. ठीक है. ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, उसके बाद हम लोग का जो आता है ये पेंटागन आता है. पेंटागन में 5 साइड्स हो जाता है. उसके बाद हम लोग का आता है हेक्सागन, इसमें 6 साइड्स हो जाता है. उसके बाद आ जाता है ऑक्टागन. ऑक्टागन आ जाता है, इसमें 8 साइड्स हो जाता है. तो इसी के बेसिस पे सारा आप आंसर जो है ये कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स का. तो पहला क्वेश्चन ऑक्टागन का है, तो ऑक्टागन में 8 साइड्स है तो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा. फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है तो 3 हो जाएगा. ठीक है. उसी तरह से रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स होता है. सो आंसर विल बी 6 देन. सो फिल इन द ब्लैंक्स आल्सो अंडरस्टूड एवरीवन. सभी को समझ में आ गया फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आंसर. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टॉकिंग अबाउट सिमेट्री इन 3D शेप्स. तो 3D शेप्स का मतलब ये जो शेप्स था ये 2D शेप्स था. अभी हम लोग का जो भी सिमेट्रिकल्स है वो 3D शेप्स से रिलेटेड है. तो 3D शेप्स का मतलब होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हो, एज लाइक द क्यूब, क्यूबॉइड, देन स्फीयर, सिलेंडर, इस तरह का जो भी ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है. सो सिमेट्री इन दोस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नाउ वी विल लर्न. सो स्टार्टिंग विद द स्फीयर. अगर स्फीयर का बात करें, आप लोग सबको ही 161 पेज नंबर निकाल लें. पेज नंबर 161 पे आ जाएं. वहां पे देखिए कुछ स्फीयर को कट किया गया है. सो डू यू थिंक हाउएवर इज इट कट, जिस तरह से भी कट किया गया है, इज दैट द सिमेट्रिकल पार्ट? सिमेट्रिकल पार्ट में कट किया गया है? क्विकली टेल मी. नो, एग्जैक्टली ये नहीं किया गया है. अगर हम लोग बात करें जो स्फीयर है, स्फीयर को इस तरह से कट किया गया है चारों को. तो इस तरह से 4 स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दिखाया गया है. 1 2
3 4। तो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को एक इस तरह से कट किया गया है, दूसरा को भी इस तरह से कट करके ही दिखाया गया है, तीसरा को इस तरह से कट करके दिखाया गया है, और इसका भी सेम पिक्चर को जो है 3 डायमेंशनल में दिखाया गया है। तो ये जो दोनों कट किया गया है, बोथ आर नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री और नॉट द सिमेट्रिकल कट। तो अगर सिमेट्रिकल कट हम लोगों को सर्कल में करना रहता है, देन हाउ वी कैन डू इज वी कैन कट इनटू द इक्वल हाफ फ्रॉम एनी पार्ट, कोई भी पार्ट में। आइदर यू कैन कट लाइक दिस, आइदर यू कैन कट लाइक दिस, or you can cut like this, but it should be cut into equal to half, then only it will be the symmetry. Now if we are talking about the cylinder में भी केस में जो है इसी तरह से है। एक केस है जिसमें इक्वल हाफ में कट किया गया है, आप देख सकते हो, जो कि हॉरिजॉन्टली कट किया गया है, अब वर्टिकली भी आप कर सकते हो। सिलेंडर एक ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, तो इसको हम लोग अगर इस तरह से कट करते हैं या इस तरह से कट करते हैं, सो इट विल नॉट बी द सिमेट्रिकल कट। बट अगर हम लोग इक्वल हाफ में पार्ट कट करते हैं, देन इट कैन बी। तो अगर हम लोग को इसका लाइन ऑफ सिमेट्री या चेक कर रहे हैं, देन आइदर यू कैन ड्रॉ लाइक दिस और यू कैन ड्रॉ लाइक दिस फ्रॉम द मिडिल। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए सिलेंडर। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, यही है दो क्वेश्चन आप लोग का 3D शेप से रिलेटेड। 18.4 का क्वेश्चन में अभी आते हैं, and let us try to solve this question. So quickly tell me everyone, what will be the answer of first question of 18.4? 18.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। Question is asking, you have to do in book only, you can do in book only because no need to draw the question and all. So I am getting as answer yes, because this question is already done also in the book. So first let us try to understand what the question is asking. Rima cuts a cake into 2 halves as shown. Are these halves symmetrical? तो ये जैसे दिखाया गया है, एक केक बनाया हुआ है, एक केक इस तरह से रेक्टेंगुलर केक है, और जो रेक्टेंगुलर नहीं है, स्पेशली ये स्क्वायर शेप में है। तो केक नॉर्मली सर्कुलर या तो स्क्वायर शेप में आता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है केक, ठीक है। तो मान लीजिए ये केक है और रीना जो है इस तरह से इसको कट लगा रही है। तो पूछा जा रहा है कि ये क्या ये सिमेट्रिकल कट है? द आंसर विल बी डेफिनेटली यस, दिस इज द सिमेट्रिकल कट। अगर इधर से भी कट लगाती तो भी सिमेट्रिकल होता, इधर से भी कट लगाती तो भी सिमेट्रिकल होता, इधर से भी कट लगाता तो भी सिमेट्रिकल होता। बट अगर थोड़ा सा भी इधर से कट लगाता, या तो नॉर्मली हम लोग जिस तरह से कट लगाते हैं, नॉर्मली थोड़ा सा कट लगाते हैं, तो वो सिमिलर हाफ में कट नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग बर्थडे में सिमिलर हाफ में, मिरर हाफ में या सिमेट्रिकल कट लगाने का कोशिश करिए। सो इसमें भी मैथ का लर्निंग है। सो एवरीवेयर यू कैन लर्न मैथ्स if you think deeply. Even in birthday cake also math is there. Okay. So next question is question number 2. Question number 2 का बताइए जल्दी से। Question number 2 का भी yes आ रहा है। Let us see. Maximum of the students are saying yes. Very nice. बहुत बढ़िया, क्विक रेस्पॉन्स के लिए। तो यहां पे पूछा जा रहा है ए स्ट्रेस बॉल। स्ट्रेस बॉल जो होता है, स्ट्रेस बॉल का नाम स्ट्रेस बॉल क्यों है पता है? स्ट्रेस बॉल एक्चुअली जो स्पॉन्ज बॉल होता है, सॉफ्ट बॉल होता है, उसको स्ट्रेस बॉल बोला जाता है। ये माना जाता है कि वो स्ट्रेस बॉल जो सॉफ्ट होता है, उसको जब आदमी स्ट्रेस में रहता है तो उसको पकड़ के रखने से, या उसको ये स्पॉन्ज टाइप का रहता है ना, तो उसको ये करने से सॉफ्ट है तो लगता है, तो स्ट्रेस उसका जो है खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द बॉल इज स्ट्रेस बॉल। सॉफ्ट टाइप का होता है, स्माइली टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस बॉल है इज कट इनटू, और नॉर्मली वो स्ट्रेस भी होता है, मतलब छोटा हो जाता है या इस तरह से होता है, उसके लिए भी बोला जा सकता है।
स्ट्रेस बॉल इज कट इनटू टू पोर्शंस एज शोन इन, आर दे सिमेट्रिकल? दो पोर्शंस इस तरह से कट किया गया है, तो ये सिमेट्रिकल है कि नहीं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेस बॉल है, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि ये जो है ये सिमेट्रिकल है कि नहीं, यहां से कट किया जा रहा है, ठीक है। तो आंसर इज डेफिनेटली यस, वेरी गुड। सो यस पे हम लोग टिक लगाएंगे। अगर इधर से होता तो क्या ये सिमेट्रिकल होता? अगर हम लोग इधर से कट लगाते तो ये सिमेट्रिकल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट थ्री डायमेंशनल शेप। तो थ्री डायमेंशनल शेप का अगर बात करें तो इसका फेस का जो आधा हिस्सा जो है, अगर हम लोग अपना फेस का बात करें तो आधा हिस्सा, दिस अपर साइड इज नॉट इक्वल टू द लोअर साइड, राइट। यहाँ पे माउथ है, नोज है और ऊपर में आईज है। तो अगर इससे इस तरह से हम लोग सेपरेट इट आउट करते हैं थ्री डायमेंशनल शेप को, देन इट कैन बी। अदरवाइज अगर प्लेन इमेज का बात करें, टू डायमेंशनल इमेज का बात करें, और अगर हम लोग जो भी इसमें ड्रॉ किया हुआ है उसको इग्नोर करें, देन इट कैन बी, अदरवाइज इट कैन नॉट बी। ओके, इन केस ऑफ 3D इट कैन नॉट बी। So this is all about the second one. Moving to the third, quickly tell me what will be the answer of third one. तो थर्ड सिलेंडर से रिलेटेड है। लेट अस सी। थर्ड में एक सिलेंडर इस तरह से दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। सो इसको जो है कोई आदमी है जो यहां से कट आउट कर रहे हैं, यहां से, तो यहां से अगर कट लगा रहे हैं तो पूछा जा रहा है इज दिस सिमेट्रिकल? एग्जैक्टली, एवरीवन इज सेइंग नो। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस मच ऑफ रेस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल, स्पेशली। ओके, सो दिस आंसर विल बी नो, बिकॉज व्हाई नो? बिकॉज दिस इज नॉट द इक्वल। तो इसको अगर यहां से कट लगाता या तो यहां से बीच से कट लगाता तो ये यस हो जाता, ठीक है। So this is these are all about two-dimensional and three-dimensional shapes, symmetry of two-dimensional shape and symmetry of three-dimensional shape. Now I hope you can able to do the miscellaneous exercise questions also of this chapter. Okay, because we have done till 18.4. That means all the chapters of 18. Now you try to do miscellaneous exercise. Okay, by yourself. Then value based question also you can do by yourself only, but still if anyone having any doubts in miscellaneous exercise or value based questions, we can discuss in our next class. Okay, so till 18.4 we have completed. Try to complete miscellaneous exercise and value based questions also by yourself in this week only, and we'll discuss further if anyone having any doubts. Okay, so anyone want to say something? किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? चलो, बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर।